Now, the topic is kinds of environment. There are two types of environment, that is natural or physical environment, and the second one is cultural environment or man-made environment. Cultural environment is made by the human beings. There are forces, processes and elements in natural environment. So forces of natural environment, processes of natural environment and elements of natural environment. We will discuss one after one. Forces of natural environment are gravitational force, tectonic force, solar energy, insolation, etc. And the processes of natural environment are radiation, conduction, convection, erosion, deposition, etc. And the elements of natural environment are, there are three elements. First is abstract elements, that is geometrical position, natural situation, area of the region, form of the region, etc. Second is physical elements, that is landform, climate, rocks and minerals, soil, surface water, etc. And the biotic elements are natural vegetation, animals, microorganisms. Like this, there are forces, processes and elements of cultural environment also. So forces of cultural environment are population, distribution, but Janashankha. Population itself is the force of the cultural environment. So population distribution, population density, age group, health of population, etc. are the forces of cultural environment. Processes of cultural environment are nutrition, reproduction, domination বা প্রভুত্ব, segregation বা পৃথকীকরণ, accommodation, specialization. These are the processes of cultural environment. Elements of cultural environment are biological pattern, that is food, cloth, house, etc. Economic pattern, primary occupation, manufacturing industries, transportation, etc. And technological pattern, machines, tools, means of mobility, etc. Next is language, literature, religion. Or next is social organization, community life, social group, marriage, etc. And the last one is political organization, like area of state, global relationship, climate of opinion. अगर हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और डिस्कस कर ले तो प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ क्या हैं, फोर्सेस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, जैसे मैंने अभी कहा ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक गुरुत्वाकर्षण, टेक्टोनिक फोर्स बा विवर्तनिक शक्ति, बा इंसुलेशन बा सूर्यताप शक्ति, वायुमंडलीय शक्तियाँ एक्सेट्रा. इन शक्तियों के द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिससे वातावरण बा तत्व बा एलिमेंट्स की उत्पत्ति होती है, जैसे भूमि की बनावट हो जाती है, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति इत्यादि तैयारी होती है. प्रोसेसेस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट बा प्राकृतिक प्रक्रियाएं इस प्रकार के होती हैं जैसे ताप विकिरण बा रेडिएशन, कंडक्शन बा ताप संवहन बा कन्वेक्शन, ताप चालन बा कंडक्शन, वायु भ्रमण, जल भ्रमण, ठीक है, और अपक्षय बा निक्षेपण, इरोजन, डिपोजिशन एक्सेट्रा. इन विधियों से प्राकृतिक वातावरण अपनी प्रक्रियाएं करता है. इन प्रक्रियाओं का अध्ययन भी भौतिक भूगोल में ही भी होती है. प्रक्रियाओं के प्रभावों का अध्ययन मानव भूगोल में होती है. और प्राकृतिक वातावरण की तत्व क्या हैं, जैसे मैंने पहले कहा एक फोर्स है, प्रोसेस है और एलिमेंट्स व तत्व है. एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स है, भाववाचक तत्व, फिजिकल एलिमेंट्स भौतिक तत्व, जैविक तत्व व बायोटिक एलिमेंट्स. एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स मैंने पहले भी कहा हूँ, जैसे जियोमेट्रिकल पोजीशन व ज्यामितीय स्थिति, नेचुरल व प्राकृतिक स्थिति व प्रदेश की कोई क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द लैंड, एरिया ऑफ द रीजन, फॉर्म ऑफ द रीजन, आकृति, प्रदेश की आकृति कैसे है, व भौगोलिक अवस्थिति व जोग्राफिकल लोकेशन क्या है. तो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स. और फिजिकल एलिमेंट्स क्या हैं, व भौतिक तत्व
जैसे लैंडफॉर्म व स्थलाकृति है, क्लाइमेट व जलवायु, रॉक्स एंड मिनरल्स, शैलो, खनिज, चट्टाने, खनिज पदार्थ, मिट्टियाँ, सॉइल्स, सरफेस वाटर व नदी, जलाशय, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा, अंडरग्राउंड वाटर व जो हमें और मतलब जमीन के नीचे जो पानी हमें मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर, महासागर, ओशन एंड ओशन कोस्ट, दीज आर द फिजिकल एलिमेंट्स। और क्या है? जैविक तत्व व बायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एलिमेंट्स जैसे प्राकृतिक वनस्पति, प्रादेशिक जीव जंतु एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व सूक्ष्म जीव। इसी तरह से जब हम सांस्कृतिक वातावरण की बात करते हैं तो सांस्कृतिक वातावरण में भी कुछ फोर्स होते हैं। मैंने कहा सांस्कृतिक वातावरण की फोर्स क्या है? मानव खुद होते हैं। तो मानव सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करने वाली शक्ति प्रत्येक देश की जनसंख्या स्वयं है। मानव वर्ग ही सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति है। मानव समाज एक सजीव और क्रियाशील इकाई है। प्रत्येक देश की सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति उस देश की जनता व पीपल है। अब प्रोसेसेस क्या हैं? प्रोसेस ये हैं जिनके द्वारा व प्रक्रिया ये हैं जो जिनके द्वारा मानव और मानव वर्ग अपना सामाजिक समायोजन स्थापित करते हैं। वो क्या हैं? जैसे न्यूट्रिशन है, ग्लोमेरेशन व सामूहिकरण है, रिप्रोडक्शन है, डोमिनेशन व प्रभुत्व स्थापन करना है, व माइग्रेशन है, प्रवास करना है, व पृथकीकरण व सेग्रीगेशन है, एकोमोडेशन है व समावेश होना, विशेषीकरण व स्पेशलाइजेशन है, व अनुक्रमण व सक्सेशन है। तो दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट व सांस्कृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं हैं। और सांस्कृतिक वातावरण के तत्व भी हैं, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हैं जैसे जैविक बायोलॉजिकल पैटर्न है, जैसे किसी प्रदेश में मानव वर्ग की भोजन और पेय, वस्त्रों, वेशभूषा, निवास और बस्तियाँ व सेटलमेंट। आर्थिक, जैसे मैंने कहा हूँ अभी, इकोनॉमिक पैटर्न व आर्थिक पैटर्न क्या है, आर्थिक प्रतिरूप क्या हैं, जैसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन व प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं व मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज व परिवहन व नौकरी व्यवसाय इत्यादि। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल पैटर्न व प्रौद्योगिकी प्रतिरूप भी है, यंत्र, उपकरण, परिवहन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, कला आदि, लिटरेचर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। फिर सामाजिक व सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय, कम्युनिटी लाइफ व समुदाय और प्रबंध तथा सहकारिता, घर, परिवार प्रणाली, विवाह प्रथा व रिचुअल्स, मैरिज इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। सोशल क्लासेस, क्लास, फैमिलीज, जो फोक रीतियाँ हैं, लोक रीतियाँ हैं व फोक वेज हैं, रिचुअल्स हैं, ये सारी फेस्टिवल्स हैं। सामाजिक प्रथाएं, सोशल कोड्स हैं, सामाजिक आदर्श व नॉर्म्स हैं, वैल्यूज है एक्सेट्रा। दीज आर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द कल्चरल एनवायरनमेंट। और क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बा ग्लोबल रिलेशनशिप है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन है, बा राज्य का क्षेत्र, संपत्ति, साधन, शक्तियाँ और कानून है। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी भिन्न होते हैं। ये मनुष्य के सामूहिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों के ही प्रभावित करते हैं। थैंक यू।